Hello, hi everyone. Myself Nivedita Singh, and we are back with another lecture on life processes. तो कल हमने ये लेक्चर स्टार्ट किया था एंड इसमें हमने डिस्कस किया था अबाउट द digestive system, right? We were discussing about the digestive system. तो digestive system में मैंने आपको एक सीक्वेंस बताया था, that is mouth, then esophagus, then stomach, और उसके बाद आता है आपका small intestine and then comes large intestine. तो कल मैं आपको stomach तक बता चुकी थी. Now in today's video I am going to explain to you about the small intestine and large intestine in detail. So please stay tuned with my lecture. और अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट इट, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंच सके एंड ऑल्सो इट मोटिवेट्स अस टू मेक more such videos. Okay, so let's get started. Okay, so as I told you that today we are going to study about the small intestine. ठीक है, small intestine, large intestine, we will study about all of this in detail. Now let's talk about small intestine. स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है बेसिकली? इट्स अ हाईली कॉइल्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, राइट? अब कहने को तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, बट यू नो इट इज लॉन्गर देन द लार्जर इंटेस्टाइन, बट द ल्यूमेन इज स्मॉलर देन दैट ऑफ अ लार्जर इंटेस्टाइन, इसीलिए इसको स्मॉल इंटेस्टाइन बोला जाता है. ल्यूमेन का मतलब होता है एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है? तो वो जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है वो छोटा होता है देन द लार्ज इंटेस्टाइन, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज स्मॉल इंटेस्टाइन. Even you know this question is very important. मैं आपको बताऊंगी कि what type of questions are being asked in the board exams, right? Yesterday like I told you that the sequence is being asked in the form of MCQ. MCQ के फॉर्म में सीक्वेंस पूछा जा सकता है कि क्या सीक्वेंस होता है. लाइक माउथ पहले आता है, चलो ये तो सबको पता है. देन कम्स esophagus, then you may get confused, maybe you may feel that intestine, small intestine comes first and then comes the esophagus, बट नहीं, माउथ के बाद esophagus आता है, then comes stomach and then comes small intestine, then comes the large intestine. Similarly here is the question that I am going to tell you. ये बहुत important question बन सकता है कि even though the small intestine is longer, then why it is called as a small intestine? It is longer than the large intestine, but then why it is called as the small intestine? तो the reason is simple, क्योंकि उसका जो lumen होता है, the tube like structure, that is smaller than the larger intestine. Okay, now very important is कि small intestine is divided into three parts. One is duodenum, jejunum and ileum, right? आप इसको DJI के फॉर्म में लर्न कर सकते हैं. जस्ट मैंने आपको एक निमोनिक्स बता दिया है, duodenum, jejunum and ileum, right? Okay, so let's talk about liver now. Liver क्या होता है? It is the largest organ in the human body. Now this is the question. Name the largest gland of the human body, in human body. So what is that? That is liver. लिवर का मेन फंक्शन क्या होता है? इट मैन्युफैक्चर्स बाइल, सो विच गेट स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर. ये मैन्युफैक्चर करता है बाइल, जो कि स्टोर हो जाती है कहाँ पे? गॉल ब्लैडर में जाके. नाउ फ्रॉम द गॉल ब्लैडर bile is released as and when it is required. अभी ये भी हम डिटेल में पढ़ेंगे कि when it is required. So as of now you just have to understand what is the liver. Name the largest gland, that is liver. What is its function? It manufactures the bile. Where it gets stored? It gets stored in the gallbladder. Okay, now let's talk about pancreas. Pancreas is situated below the stomach. Stomach के नीचे होती है. And what is the function? Pancreatic juice secrete करता है, which contains many digestive enzymes, which is helpful in digestion of the food. Okay, as you can see here, small intestine. Now you know that intestinal enzymes कौन कौन सी होती हैं? Carbohydrates, fats, proteins. ठीक है? So यहाँ पे आपको जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है, देखो, कार्बोहाइड्रेट्स से बना ग्लूकोज, देन फैट विल हेल्प इन मेकिंग फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल. प्रोटीन्स किससे बने होते हैं? अमीनो एसिड से. ठीक है? फैट किससे बने होते हैं? फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल से. प्रोटीन्स किससे बने होते हैं? अमीनो एसिड से. स्मॉल इंटेस्टाइन में मैंने आपको एक बताया था अभी, ड्यूडेनम होता है, जेजुनम होता है, नीलियम होता है. नाउ इट ऑल्सो कंटेन्स विलाई, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. विलाई आर द फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस. वो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है ऐसे करके. ठीक है? व्हाट इज इट्स फंक्शन? इट हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड इनटू द blood. Very important function of villi is it helps in absorption of food into the blood. Now small intestine receives the secretions from liver. liver आपको पता है liver का क्या फंक्शन होता है? secretes the bile.
bile juice which is stored in the gallbladder. Now I told you pancreas. Now मैंने आपको बताया था अभी कि मैं बाइल का फंक्शन आपको बताऊंगी. So biles are basically for emulsification of fats. Emulsification मतलब breakdown. So what they do is they break the large fat globules into the smaller fat globules. Very important. So what is the function of bile? What is the function of liver? It secretes bile. Bile is stored in the gallbladder. What is the function of bile? It helps in emulsification of fats. Emulsification का मतलब क्या होता है? Breakdown. Breakdown of fats. लार्ज जो फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं उनको वो स्मॉलर फैट ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट कर देता है. दैट इज द फंक्शन ऑफ बाइल. राइट नाउ इट स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव्स secretions कहाँ से? एक तो लिवर से एंड वन इज फ्रॉम पेनक्रियाज. आई टोल्ड यू अबाउट द पेनक्रियाटिक जूसेस. ठीक है, वन इज ट्रिप्सिन, अदर वन इज लाइपेज. ये भी आता है. पेनक्रियाटिक जूस कौन कौन से होते हैं? ट्रिप्सिन. सो ट्रिप्सिन का क्या फंक्शन होता है? प्रोटीन्स को पेप्टोन्स में कन्वर्ट करता है, आपको लर्न करना पड़ेगा. और लाइपेज का क्या फंक्शन होता है? फैट्स को ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करता है. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद करना पड़ेगा. पेनक्रियाटिक जूस कौन कौन से होते हैं? ट्रिप्सिन एंड लाइपेज. ट्रिप्सिन का क्या फंक्शन होता है? प्रोटीन्स को पेप्टोन्स में कन्वर्ट करता है. राइट. लाइपेज का क्या फंक्शन होता है? फैट्स को किस में कन्वर्ट करता है? ग्लिसरॉल में. ओके, सो दिस यू हैव टू लर्न. दिस टेबल इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये अगर आपको ये टेबल याद हो गई, आपको स्मॉल इंटेस्टाइन, पेनक्रियाज, लिवर, इन सबका फंक्शन सब कुछ याद हो जाएगा इफ यू लर्न जस्ट दिस टेबल. सो प्लीज रिमेंबर दिस टेबल. बार बार इसको प्रैक्टिस करो. विलाई कहाँ प्रेजेंट होता है, उसका मेन फंक्शन क्या होता है. स्मॉल इंटेस्टाइन को सिक्रीशंस कहाँ से मिलते हैं? एक तो मिलता है लिवर से, तो लिवर क्या सिक्रीट करता है, वो कहाँ पे जाके स्टोर होता है. और बाइल का क्या फंक्शन होता है? एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स. पेनक्रियाटिक जूसेस कौन कौन से होते हैं? ट्रिप्सिन होता है और एक लाइपेज होता है. ट्रिप्सिन प्रोटीन्स को पेप्टोन्स में कन्वर्ट करता है, लाइपेज क्या करता है? फैट्स को ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करता है. सो मैंने फटाफट जल्दी बता दिया है. सो आप इस टेबल को बार बार देख लेना और पढ़ लेना. इसको अपने नोटबुक में भी बना लेना चाहे तो. अगर ये टेबल आपको याद है तो आपको कुछ भी अलग से याद करने की जरूरत नहीं है. स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में, पेनक्रियाज के बारे में, लिवर के बारे में, बाइल के बारे में आपको अलग से याद करने की जरूरत नहीं है. ओके, नाउ बाइल and pancreatic juice go to the duodenum. Duodenum, I told you, it is one of the part of the small intestine through a hepatopancreatic duct. Right. Bile क्या करता है? I told you, emulsification of fat इसका function होता है, breaks down the fat, the large fat globules into the smaller fat particles. After that, enzyme lipase उसको digest करता है fats को, किसमें? Glycerol में. Right. Trypsin and chymotrypsin are the enzymes which digest the proteins into amino acids. अभी हमने एक पढ़ा था ट्रिप्सिन, एक पढ़ा था लाइपेज, एक पढ़ा था, अब एक और है काइमोट्रिप्सिन. इन दोनों का फंक्शन सेम होता है, ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन का. ये प्रोटीन्स को डाइजेस्ट द प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करते हैं इनटू अमीनो एसिड्स. राइट. प्रोटीन्स इनटू पेप्टोन्स कन्वर्ट हो जाता है. कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं, दे आर डाइजेस्टेड एज ग्लूकोज. ये तो पता ही है. द मेजर पार्ट ऑफ डाइजेशन टेक प्लेस इन द ड्यूोडेनम. नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये लाइन आपको ऐसी लग रही होगी बट दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सी, हम पढ़ते तो बहुत कुछ है लेकिन हमें ये याद रखना है कि क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं एज फार एज एग्जाम इज कंसर्न. और नॉट ओनली द बोर्ड एग्जाम बट ऑल्सो योर ये जो आप देते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, उन एग्जाम्स के लिए क्या क्या चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं. सो अनदर इंपॉर्टेंट फैक्ट इज कि मेजर पार्ट ऑफ डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन के कौन से पार्ट में होता है स्पेसिफिकली. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो कौन सा पार्ट है वो? दैट इज डियोडेनम. ओके, नाउ नो डाइजेशन टेक प्लेस इन जिजनम. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आपको मैंने बताया था स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स होते हैं. मैंने आपको एक निमोनिक्स भी बताया था, DJI यानी कि डियोडेनम, जेजुनम एंड इलियम. इलियम, राइट. कोई जो मेजर डाइजेशन होता है दैट टेक्स प्लेस इन द डियोडेनम. जेजुनम में कोई भी डाइजेशन नहीं होता. नो डाइजेशन टेक प्लेस इन द जेजुनम. इलियम का मैंने अभी आपको बताया, इलियम कंटेन्स विलाई. विलाई आर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन और वो इसलिए होता है ताकि मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हो सके. तो डियोडेनम, जेजुनम, इलियम. मैक्सिमम डाइजेशन कहाँ होता है? डियोडेनम में. जेजुनम में क्या होता है? कोई भी डाइजेशन नहीं होता. इलियम कंटेन्स व्हाट? विलाई. दे आर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस which helps in the absorption of food. Right. Now villi क्या करता है? Increase the surface area inside the ileum so that maximum absorption can take place. Villi also reduce the lumen of the ileum so that food can stay for longer duration in it for optimum absorption. तो villi का ले देखिए एक ही फंक्शन है. Villi, ileum contains villi. Villi are nothing but the finger-like projections. Finger-like projections का क्या फंक्शन है? That is maximum absorption can take place, right? और इसका जो ल्यूमेन होता है, ल्यूमेन आई टोल्ड यू, मैंने भी आपको बताया स्मॉल इंटेस्टाइन का ल्यूमेन बहुत छोटा होता है एंड दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एज अ स्मॉल इंटेस्टाइन. अदरवाइज दे आर लॉन्गर देन द लार्ज इंटेस्टाइन. राइट.
तो ल्यूमेन जो होता है उसका छोटा होता है, विलाई कैन ऑल्सो रिड्यूस द ल्यूमेन ऑफ द इलियम ताकि फूड उसके अंदर लॉन्गर ड्यूरेशन तक रह सके। डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब्ड बाय विलाई। तो देखो स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट, तीनों का अलग अलग फंक्शन, राइट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन इज स्मॉलर देन द, आई टोल्ड यू। अब ये क्वेश्चन आपका एमसीक्यू की फॉर्म में आ सकता है, ठीक है, आप या फिर असर्शन रीजनिंग में आ सकता है। ये वो बोल सकते हैं कि लार्ज इंटेस्टाइन इज स्मॉलर देन द स्मॉल इंटेस्टाइन, एंड देन रीजन में वो आपको कुछ भी दे सकते हैं। सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दिस पर्टिकुलर लाइन। अनडाइजेस्टेड फूड, सो मैक्सिमम डाइजेशन कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन के भी कौन से पार्ट में मैक्सिमम डाइजेशन होता है? दैट इज डिओडेनम, अभी हमने देखा। अब नो डाइजेशन टेक प्लेस, अब आपको ये एमसीक्यू के फॉर्म में आ सकता है। नो डाइजेशन टेक प्लेस, तो जेजुनम में कोई भी डाइजेशन नहीं होता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अनडाइजेस्टेड फूड जो होता है वो कहाँ जाता है? सारा लार्ज इंटेस्टाइन में। अनडाइजेस्टेड फूड कहाँ जाता है? लार्ज इंटेस्टाइन में। सम वाटर एंड सॉल्ट आर एब्जॉर्ब्ड बाय द वॉल्स ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। आफ्टर दैट कुछ वाटर या सॉल्ट जो भी होता है इसके अंदर वो एब्जॉर्ब हो जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन की वॉल्स उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। उसके बाद इट गोज टू द रेक्टम फ्रॉम वेयर इट इज एक्सपेल्ड आउट थ्रू एनस। ओके, नाउ लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब एक्सेस ऑफ वाटर, यहाँ पे वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। द रेस्ट ऑफ द मटेरियल इज रिमूव्ड, एंड यू नो द प्रोसेस थ्रू विच द फूड इज रिमूव्ड इज कॉल्ड एज इजेशन।